السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور قریشی اور میرے ساتھ ہیں یاسر رحمان جی. مجھے یاسر رحمان کہتے ہیں, آپ کو ہم صبح بخیر کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ دعا آپ کے لیے ہے کہ آج کا دن آپ کا بہت برکت والا دن گزرے. جی جناب. اور صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اسٹوڈیو آتے ہوئے بہت سی چیزوں کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. آج کچھ ان یوزول ہے, کچھ ڈفرینٹ ہے, اور روز کوئی نہ کوئی ایسی ڈفرینٹ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یا بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو یاسر, جب آج آپ اسٹوڈیو آ رہے تھے تو کچھ آپ نے دیکھا مختلف؟ یقیناً یہ چیز تو میری نظر سے تقریباً روز ہی گزرتی ہے. اس میں مجھے کافی پریشانی بھی ہوتی ہے. جس وقت ہم اپنے اسٹوڈیوز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وینس بچوں کو بھی لے کر جا رہی ہوتی ہیں, پرائیویٹ وینس ہوتی ہیں جو اسکول کے بچوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں. تو آج بھی میں نے دیکھا کہ بچے بری طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وین کے اندر بٹھائے ہوئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیگز ان کے لٹک رہے تھے, اور جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ وینس چلا رہے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا 2 منٹ کے لیے کہ اگر میرے بچے ہوتے یا یہ جو پیرنٹس جن کے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا یہ اس کا کلپ دکھا دیا جاتا کہ یہ گاڑی کس طرح چلا رہے ہیں, تو کیا کبھی وہ اپنے بچوں کو بھیجتے؟ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بالکل. اور موسٹلی جو ہے نا, موسٹلی یہی والا کنسرن ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ ہمارے بچے ٹائم سے اسکول پہنچ جائیں. اب وہ جس حالت میں بھی پہنچتے ہیں پیرنٹس آر اوکے ود دیٹ, لیکن اس چیز پہ بہت زیادہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے جس طرح آپ نے کہا بٹھائے ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی بچوں کو اوور لوڈ کیا ہوتا ہے اور ان کو کوئی روک بھی نہیں رہا ہوتا. تو ایسے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں کی گودوں میں بچے بٹھائے ہوتے ہیں. کیونکہ مانور یہی جو بچے ہیں انہوں نے بڑے ہو کے کرکٹر بھی بننا ہے, انہوں نے بڑے ہو کے جو ہے بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان بچوں پہ توجہ بھی دیں, اور خاص طور پہ وینس والوں کے یار 2-4 ہزار روپے اوپر نیچے کوئی بات نہیں ہے. تو بات ہم نے کرکٹ کے حوالے سے کی, تو کل ایک تاریخ رقم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی. ایک ایسا کام جو کہ گلین میکسویل نے کیا, ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارا میچ افغانستان نے اپنے نام کر لیا ہے, لیکن ایک شخص نے, ون مین آرمی اس کو میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اس نے میچ کا پانسا پلٹ دیا, اور وہ کھڑا رہا, وہ ڈٹا رہا, اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور وہ آگے کی طرف چلتا رہا. وہ زخمی بھی ہو گیا لیکن اس نے وہ کرکٹ دکھائی جو آج سے پہلے شاید میری اپنی دانست کے اندر ایسی کرکٹ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. پاکستان میں جو اس وقت اسکرین کے اوپر جو رش تھا, جو لوگ دیکھ رہے تھے, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہیں اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی تھی. یہ نہیں کہ وہ ٹیم کون سی ہے, آسٹریلیا کھیل رہی ہے, پاکستان کھیل رہی ہے, لیکن بہترین کرکٹ کل گلین میکسویل نے کی. اور وہ کہتے ہیں کہ کیچز ون دا میچز. وہ کل ہم نے دیکھا, اس کی جو پریکٹیکل اگزامپل دیکھی کہ آپ کی بیٹنگ اچھی ہو سکتی ہے, آپ کی بالنگ اچھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کی فیلڈنگ ماٹھی ہے تو پھر وہی ہوا جو کہ کل گلین میکسویل نے کیا. اگر وہ کیچز ڈراپ نہ ہوتے تو شاید سچویشن آج مختلف ہوتی. اس پر بات کرنے کے لیے رضوان علی احمد ہمارے کولیگ بھی ہیں اور اسپورٹس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں رضوان گڈ مارننگ شو کے اندر. یہ فرمائیے گا کہ کل گلین میکسویل مارولس, فیبولس, فانٹاسٹک, کیا ورڈ یوز کریں اس کے لیے؟ مجسٹک میکسویل. جس طرح سے میکسویل نے کل اننگز کھیلی ہے, نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ کیچز ون دا میچز, اور 2 بہت آسان کیچز تھے جو ان کے ڈراپ ہوئے, اور لیکن پھر بھی کرکٹ میں یہ بہت ریئر ہے چیز کرتے ہوئے 200 رنز کرنا, اور اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کرنا. دوسرے اینڈ سے جو کمنز ان کے ساتھ موجود ہیں, کیپٹن ہیں ان کے, اور وہ شاید 60 بالوں پہ انہوں نے 12 رنز بنائے تھے, اور سلویسٹ اننگز تھی ایک چیز کرتے ہوئے. اس کے باوجود میکسویل کی شاندار اننگز اور تمام پلانز جو تھے بالنگ سائڈ کے ان کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کل. اور ایک بڑا واضح پیغام تھا. ریسنٹلی جو میچز میں ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھا چیز کرتے ہوئے ساؤتھ افریقہ جو ہائی رنز کرتی ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم, شری لنکا کی ٹیم, اس کے باوجود تمام ٹیمز نے اسٹرگل کیا ہے. چیز کیا سری لنکا کو لیٹر آن ورلڈ کپ کی جو سیکنڈ سٹیج ہے, اب جو 8 اور 9واں میچ ہو گئے گروپ سٹیجز پر, اس میں چیز کرتے ہوئے مشکلات آ رہی ہیں ٹیمز کو. کل آسٹریلیا بھی ارلی آن اسٹرگل کیا, میں نے کہا 91 پہ ان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. اس سے قبل ساؤتھ افریقہ 84 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی, شری لنکا 55 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے. پہلے یہ تھا ورلڈ کپ میں اب ٹاس جیت رہے ہیں, اب پہلے فیلڈنگ کر رہے ہیں, بیٹنگ کر رہے ہیں, کیونکہ چیز کرنا آسان ہے, ڈیو فیکٹر آ رہا تھا. لیکن اب کچھ چینج ہوا ہے, ویدر چینج ہے, ڈیو فیکٹر یا پھر کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچ کے ساتھ بھی کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حساب سے انڈینز نے بنایا ہے, یہ بھی کوئی بات تنقید کی جا رہی ہے. یاسر یہ تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, جو ہوم کنٹری ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. فٹ بال میں بھی
तमाम 32 ममालिक ہم کو اس پہ تو ضرور آئیں گے, لیکن تھوڑی میکس ویل کو اگر ہم ٹریبیوٹ نہ پیش کریں یہاں پہ اور تھوڑا وقت اس کو نہ دیں جیسے تو بالکل آغاز میں ہم نے کہا کہ سنگل ہینڈڈلی انہوں نے اس میچ کو کامیاب کروانے میں اپنا کردار ادا کیا, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ بڑا واضح پیغام تھا کہ آپ کو سٹے کرنا ہے وکٹ پر, کچھ جلد بازی کوئی نہیں کرنی, اور جو بلے باز آ رہے تھے جلد بازی کر رہے تھے اور چیز کرتے ہوئے سب سے بڑا پریشر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھیلنا ہے, اپنا اسٹروک روکنا نہیں. پریشر نظر آیا کل میکس ویل پہ؟ میکس ویل پہ پریشر نظر نہیں آیا, اس نے اپنی کرکٹ کھیلی, اس نے اپنی کرکٹ کھیلی لیکن ٹیم کے لیے کھیلی, ٹیم کے لیے کھیلی, دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ. اکثر اوقات کھلاڑیوں پر تنقید کی جاتی ہے کہ یہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں, ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہے, اور ہم نے دیکھا بڑے ایگریسولی کھیلا اور بہت اچھے سے کھیلا, اور جو ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے ایک کرکٹر کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے, ویسے ہی کل کھیلا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے پارٹنرشپ اور ٹیم کے لیے کھیلنا؟ مانور ابھی یاسر بھائی نے بات کی تھی کہ کرکٹ کی تاریخ میں شاید اس طرح کے مواقع بہت کم ہوں. ملتان ٹیسٹ تھا ہمارا یاسر بھائی, انضمام بیٹنگ کر رہے تھے, ساتھ ان کے لاسٹ مین شعیب اختر تھے, اور بنگلہ دیش کے خلاف ہمارا پہلا ٹیسٹ میچ تھا. انضمام الحق نے اس ٹیسٹ میچ میں, غالباً دوسرا ٹیسٹ میچ تھا سیریز کا, اس ٹیسٹ میچ میں انضمام الحق نے سنگل ہینڈڈلی ایسا ہی ایک میچ جتوایا تھا پاکستان کو, لیکن وہ ٹیسٹ میچ تھا, اس میں اوورز نہیں تھے, او ڈی آئی اور ورلڈ کپ ہے, ورلڈ کپ میں پریشرز, اور پھر چیز کرتے ہوئے ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے 290 کا ٹارگٹ ہو, چیز کرتے ہوئے بڑی بڑی ٹیمز اگر ان کے ٹاپ آرڈر پرفارم نہ کرے تو وہ ویسے کولیپس کر جاتے ہیں. لیکن میکس ویل نے کل کولیپس ہونے کے باوجود ری بلڈ کی اننگز, اور خاص طور پر جیسے جب وہ انجرڈ ہوئے, کریمپ آیا, اور وہ اتنا شدید کریمپ تھا کہ وہ بھاگ بھی نہیں سکتے. اب نئے رولز کے مطابق آپ کو رنر بھی میسر نہیں ہوتا, اور ایک اور جو نیا ایڈیشن ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ ہو, ہرٹ ہو کر باہر جاتے ہیں تو آپ واپس بھی نہیں آ سکتے. اوہ مائی گاڈ, تو اس وجہ سے ان کو یو آفر ہیو کی ٹو گئی. پلے, یو ہیو ٹو بی آن دا فیلڈ, کم واٹ میں. اور زامپا باؤنڈری لائن پر آ گئے اپنے پیڈز کر کے, ہیلمٹ تیاری کر کے, اب وہ اننگز کھیلیں گے. شاید میکس ویل کو اگلے میچز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ میچز ہیں, کیونکہ آسٹریلیا نے کوالیفائی کر لیا ہے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے. تو آسٹریلیا کے لیے اب آگے جانا اور اگلے میچز کو فوکس کرنا, اور اہم پلیئر جو کہ آل راؤنڈر ہیں, شاندار فیلڈر ہیں, شاندار بالر ہیں اور شاندار بیٹر ہیں, اور کل تو سب انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہیروک اننگ کیسی ہوتی ہے. تو اب ذرا افغانستان کی طرف بھی آ جاتے ہیں. افغانستان کو بھی ہمیں ایزیلی لینا چاہیے, کیونکہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں. افغانستان نے دیکھا جائے تو انضمام ہو گئے, باقی انہوں نے اس ٹیم کو بنایا ہے, انپریڈکٹیبل ہے, اور جس طرح اس نے پرفارم کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کی جو چانسز ہیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے, ابھی وہ اوور تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں, چانسز آر اسٹل دیئر. کل نیوزی لینڈ ہار جائے سری لنکا سے, پاکستان انگلینڈ کا میچ اس میں انگلینڈ جیت جائے تو پھر اور افغانستان اپنا آخری میچ ساؤتھ افریقہ سے جیت جائے تو افغانستان کوالیفائی کر سکتا ہے. واٹ اباؤٹ پاکستان؟ پاکستان کے لیے پہلے تو ہمیں نیوزی لینڈ کے میچ کا انتظار کرنا ہوگا سری لنکا کے ساتھ. نیوزی لینڈ کے ساتھ کل میچ ہے سری لنکا کا, اور بنگلورو میں میچ ہو رہا ہے, اور وہاں پر اس پورے ویک میں لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں, اور کل بھی بارش کی پریڈکشن ڈرا ہو جائے گا 60% چارج کے, اور قدرت کا نظام تو چل رہا ہے. ایک پوائنٹ مل گیا تو پاکستان کے لیے چانسز برائٹ ہو جائیں گے. پاکستان کے لیے چانسز اتنے برائٹ ہو جائیں گے کہ پاکستان کو صرف اپنا میچ جیتنا ہوگا, پھر انگلینڈ کے اپنا میچ جیتنا ہوگا جو انگلینڈ کے ساتھ. اگر نیوزی لینڈ کل کا میچ جیتا ہے تو 130 پلس ہمارا آلریڈی ڈفرینس ہے نیٹ رن ریٹ پہ نیوزی لینڈ کے ساتھ, اور کل کا میچ اگر نیوزی لینڈ جیتا ہے, کتنے مارجن سے جیتا ہے ایڈ آن, پھر ہمیں اپنا نیٹ رن ریٹ بہتر کرنے کے لیے اتنے مارجن سے جیتنا ہوگا. اوکے, تو انگلینڈ کی جو پوزیشن ہے ابھی, کرنٹ جو کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے, اور پاکستان کی جو کرنٹ کنڈیشن ہے, جیسے پاکستان نے کم بیک کیا ہے, فخر ہمارا فخر ہیں اس وقت, اور وہ جو کام کر رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, پریڈکشنز کیا ہیں؟ کرکٹ میں یاسر ایک نیا دن ہوتا ہے, ایک نیا گیم ہوتا ہے, اس میں کسی چیز کو پریڈکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے شاید کسی نے بھی پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ فخر یہ کریں گے کیویز کے ساتھ, اور ایون ارلی آن جو میچز تھے, پہلے 3 میچز ورلڈ کپ میں, اس میں یہی کویسچن ہوتا ہے کہ فخر کو کیوں کھلایا جا رہا ہے, یہ نہیں پرفارم کرے تو کیوں کھلایا جا رہا ہے. پھر امام پہ آیا, بابر پہ آیا. ہم چاہتے ہیں ہر میچ یہ سوال ہو کہ کیوں نہیں کھلایا جا رہا, ہمارا ہر میچ میں ایک ہیرو ہونا چاہیے. صحیح ہے, اور اس ہیرو کو ہر میچ میں پرفارم کرنا چاہیے. ایسا ہوتا نہیں ہے کرکٹ میں. دوسری ٹیم بھی تیاری کر کے آتی ہے, آپ کی کمزوریوں کو ایکسپوز کرتے ہیں, آپ کی اسٹرینتھ پہ کام کرتے ہیں. بہت سائنٹیفک ہو گیا. کل افغانستان کے میچ میں جو سب سے اہم چیز تھی, انہوں نے افغانستان نے کل آسٹریلیا کے تمام بالرز کے اوپر, تمام بیٹرز کے اوپر کام کیا تھا. دیکھیں انہوں نے میرٹ پر بالز کھیلی, اپنی وکٹس نہیں دیں, شاندار پارٹنرشپ 160 پلس کی پارٹنرشپ لگائی سیکنڈ وکٹ کے لیے. اس کے بعد جب آسٹریلیا بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے جو فیوریٹ زون تھے, جیسے میں نے فیوریٹ شاٹ کھیلنے کے لیے سعید انور جاتے تھے اور اسی گیند پر اپنی وکٹ بھی دیتے تھے, تو کل آسٹریلیا کے ساتھ بھی انہوں نے ویسے ہی کیا. ان کو ان کے رینج میں بالز دیں اور وہ اس پہ اپنی وکٹ دیتے رہے. اس کی جو فالٹ لائن ہے وہ کل بڑی کلیئر ہو کے سامنے نہیں آئی فیلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. obviously ابھی افغانستان کو بہت طویل سفر طے کرنا ہے. دیکھیے پہلے پریڈکٹیبل تھے کہ یہ 190 کریں گے,
200 کریں گے, چیز کرتے ہوئے آؤٹ ہو جائیں گے, بڑا اسکور کریں گے تو پھر اس کو کنٹین نہیں کر پائیں گے, چیز ہو جائے گا آسانی سے, وکٹ نہیں لے پائیں گے. لیکن اس ورلڈ کپ میں انہوں نے نہ صرف بڑی ٹیمز کے خلاف رنز کیے بھی ہیں اور بلکہ بڑے اسکور کرنے سے روکا بھی ہے ٹیمز کو. ان کی بالنگ نے کلک کیا ہے. ایک ڈفرینٹ چیز 4 اسپنرز کے ساتھ ورلڈ کپ میں آنا, یہ اور بہت بڑا رسک ہوتا ہے. اب دیکھیے انہوں نے کتنا اچھا ریڈ کیا ہے کنڈیشنز کو اور انڈین پچز کو. صحیح. اچھا, آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہماری امیدیں تھی ویسے کچھ کھلاڑیوں نے پرفارم نہیں کیا, اور جن سے ہماری امیدیں نہیں تھیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, بہت اچھا کم بیک کیا. اب جو 11 نومبر کو میچ کھیلا جائے گا, آپ کو ابھی تک کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی گیمنگ اسٹریٹجی کیسی جا رہی ہے؟ پاکستان جتنے بھی ایونٹس دیکھیں مانور, اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم ارلی آن اگر ایونٹ کا بہت اچھا سٹارٹ ہو جائے ہمارا, تو لیٹر سٹیجز پہ جا کے ہم کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ارلی آن اسٹرگل کریں, لیکن سم ٹائمز ہم کچھ میچز میں اوور کانفیڈنٹ بھی تو نظر آئے نا. ابھی تک ہم صرف آغاز جو ہمارا تھا وہ شری لنکا کا میچ جیتنے کے بعد ہم تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہوئے, لیکن اس کے بعد اوور آل پاکستان ٹیم نے بہت اچھی, بہت کیلکولیٹڈ کرکٹ کھیلی ہے. ابھی ہمارا کوئی آرڈر میں چینج ہونا چاہیے؟ ابھی آئی تھنک کوئی چینج نہیں ہوگا, ہے بھی نہیں, آن کارڈز کچھ نہیں, آن کارڈز بھی کچھ نہیں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, ہونا بھی نہیں. کریٹیکل سچویشن ہے ابھی. بہت شکریہ رضوان, آپ کی قیمتی وقت کا, آپ نے ہمیں کھیلوں کی دنیا سے آگاہ. کرکٹ ورلڈ کپ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ تمام لوگ جو ہے نا ان کی نظریں آج کل کرکٹ ورلڈ کپ میں ہیں, اور کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ہم بھی بڑے کل جس طرح ہم میچ دیکھ رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا اب تو میچ جو ہے آسٹریلیا کے ہاتھ سے نکل گیا. آپ نے نظر کی بات کی تو نظر کو کلیئر ہونا بھی بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے موسم کا کلیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ پاکستان کو پرابلم آ رہی ہے وہ ہمارے ہارٹ یعنی لاہور کے حوالے سے آ رہی ہے, اور لاہور ڈویژن کے حوالے سے آ رہی ہے, گجرانوالہ کے حوالے سے آ رہی ہے, اور وہ ہے اسموگ کا ایشو آ رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ وہی ہے کہ جو فصلوں کی باقیات کو انڈیا میں جلایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپیریزن اگر ہم کر لیں فصلوں کی باقیات کو جلانے کے حوالے سے تو انڈیا میں تقریباً 4 ٹائم زیادہ جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے, اور ہمارے ہاں تھوڑا سا اس کو کم, لیکن ہمارے ہاں بھی جلایا جا رہا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سانس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہاسپٹلز میں انٹیک زیادہ ہو رہی ہے, اور ڈاکٹرز بھی کافی پریشانی میں مبتلا ہیں. اور اسی لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ متعارف کروا دیا گیا ہے کہ اب 2 سے 3 دن جو ہے مسلسل, بلکہ 4 دن جو ہے وہ اسے مختلف شہروں کو بند کیا جائے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس اسموگ کا جو ایفیکٹ ہے, جو انڈیکس ہے, اس کے اندر کمی لائی جا سکے, تاکہ تھوڑا سا جو صحت کے مسائل جو بڑھ رہے ہیں ان پہ قابو پانے میں. لیکن یہ کیونکہ بہت زیادہ دیر پا نہیں ہے, فیوچرسٹک نہیں ہے, اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے. اس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اسموگ کے حوالے سے ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا, جس پہ اقدامات کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے اپنے مارننگ شو پر بات کی تھی کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی روک تھام کے لیے کام کیا جا رہا ہے, لوگوں کو انوائرمنٹ فرینڈلی وہیکلز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی یاسر نے بھی آپ کو بتایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جائیں گے, کیونکہ اس سے بھی ایئر کوالٹی انڈیکس پہ فرق آتا ہے. اب کل کے پروگرام میں ہم نے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ 380s میں تھا, اور آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے 336. سو ہوپ فلی جب 9 نومبر کی چھٹی ہوگی یا اس کے بعد ایک اور چھٹی بھی ہوگی تو تھوڑا سا انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے گا ہمارے لیے باہر نکلنا, بیکاز باہر نکلنا, سانس لینا اب بہت دشوار ہو گیا ہے. اس پر کیا حکومت کی حکمت عملی ہے اور کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ عوام کو کیا کرنا چاہیے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں بلال افضل صاحب موجود ہیں جو کہ صوبائی وزیر برائے ماحولیات, منصوبہ بندی اور ترقی, جنگلی حیات اور جنگلات ہیں. سب سے پہلے تو بلال صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو بات کی ہے, لیکن حکومت اب کون کون سے اقدامات ہیں جو اٹھائے گی خاص طور پہ اسموگ کو اس کی روک تھام کے لیے اور ہمارے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم باہر نکل سکیں, سانس لے سکیں اور بیماریوں سے بچ سکیں. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سب سے پہلے ہم لوگوں نے نا 2023 کے اندر ہی اسموگ رولز اپنے پاس کیے ہیں, جس کے ایزیئر ہو گیا امپلیمنٹ کرنا انڈسٹریز کے اوپر, کراپ برننگ کے اوپر. بٹ ہمارا امپلیمنٹیشن کا جہاں چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے فارمرز کو کوئی آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی نہیں دی کہ وہ اپنی کراپ جو ہے وہ ٹائم پہ لگا سکیں. تو ہم اس کو اتنا اسٹرکٹلی جو ہے وہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے, لیکن نن دا لیس پنجاب سائڈ کے اوپر کافی فارمر کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ جلانے سے اس کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے. بٹ آن دا انڈین سائڈ
देयर दिस ऐप IQ Air के नाम से, अगर आप गूगल करके अपने भी व्यूअर्स को दिखाएं, इट शोज यू लाइव डाटा कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कितना कितना एरिया बर्न हो रहा है. यूल सी कि इंडियन साइड ऑफ पंजाब इज ऑल रेड. हमारे इश्यूज हैं गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, बट आपका उकाड़ा साहिवाल जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल के अंदर है. सो वी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस. साथ लोगों को बता रहे हैं कि अपना मास्क पहने. हमने इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी भी लगा दी है, हमने एनवायरमेंटल इमरजेंसी भी लगा दी है. 9th को ऑलरेडी छुट्टी आ रही थी, तो वी मेड श्योर कि 10th को भी हम लोग छुट्टी करें, ताकि 9th 10th सैटरडे संडे हम लोगों का एक ब्रेक ऐसा बन जाए. जो इक़दामात आपकी हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं, ये इसको आप शॉर्ट टर्म ही गर्दानेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लान किया हुआ है? क्योंकि ये जो चीज़ है इसे मल्टीप्लाई इफेक्ट होने से रोकने के लिए. और दूसरा, ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि शायद जो इंडियन पंजाब की गवर्नमेंट है उसको कोई ख़त भी लिखा जा रहा है इस हवाले से कि कोई जॉइंट मैकेनिज़्म बनाया जाए. कुछ इस तरह की बात ऑन कार्ड है आपके यहाँ? और क्या इसको रोकने के लिए, क्योंकि हर साल जी जी सॉरी, हम लोगों ने ना फेडरल गवर्नमेंट को ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, और डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करते हुए वो इंडिया के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो अपने साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर ये चीजें कंट्रोल करें. बट हम लोगों का यही है कि हमारे वी डिड नॉट हैव पॉलिसी अराउंड स्मॉग. हम लोग कोर्ट्स की जजमेंट यूज करके फाइंस कर रहे थे, तो वो हमने कर दी है. इसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन which is a long term ongoing process कि आपकी हर फैक्ट्री के अंदर एंटी स्मॉग्स जो भी आपकी इक्विपमेंट लगनी होती है, डीकार्बनाइजर्स होते हैं, वो लगें. फार्मर को बताया जाए कि उसका क्रॉप बर्न करने से उसका अपना नुकसान होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है वो जल जाता है, आपका सॉइल आपका दोबारा रीसेट हो जाता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड आई होप कि नेक्स्ट गवर्नमेंट्स भी जो हैं एनवायरनमेंट को बहुत सीरियसली ले. हमारी सीरियसनेस इस पे दिखा रही है कि हम लोगों ने वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ, जो कि जिसका हमें पता है कि स्कूल्स के अंदर कितना नुकसान होता है, ऑफिसेस का कितना इकोनॉमिक नुकसान कितना होता है, बट नॉनदलेस वी हैव टू डू इट. वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस नाउ. सही सही. अच्छा बिलाल साहब, अगर बात की जाए दुनिया इसको किस तरह टैकल करती है, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरह टैकल करती है? यूरोप के बहुत से ममालिक में हफ्ते के 2-3 दिन ऐसा होता है कि विद इन द मार्केट सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट जा सकती है, लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे नहीं जा सकते, लोग साइकिल्स पे जाते हैं या लोकली जो बसेस होती हैं उन पे जाते हैं. इससे भी तो हम स्मोक को या इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं ना, स्मोक से स्मोक से बचा जा सकता है इस तरह के इकदाम. और ये बहुत स्मार्ट इकदाम हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिसेज बंद हो जाएंगे. तो हुकूमत इसकी जानिब जाने का सोच रही है, या इस तरह की कोई चीज़ है आपकी प्लानिंग्स में? जो सिटीज आपकी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के ऊपर चल रही होती हैं या ट्रांसपोर्ट के ऊपर चल रही होती हैं, उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होता है वो हमसे बहुत बेहतर होता है. हम लोगों की सिर्फ मेन आर्टरीज के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, आपकी स्मॉलर आर्टरीज के ऊपर नहीं होती, जिसकी वजह से ये चीज़ करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो. बट नॉनदलेस जब हम लोगों की कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग मिलती है, हम लोगों ने इवन ऑड नंबर प्लेट्स जिस तरीके से ऑलरेडी दिल्ली के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, दिल्ली में उन्होंने स्कूल्स बंद कर दी हैं फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर. एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि वो अपनी ट्रैफिक कम करते हैं. सो ट्रैफिक 40 to 45% ऑफ योर स्मॉग इन लाहौर एंड इन दिल्ली इज बिकॉज ऑफ योर ट्रैफिक. धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, और वैसे भी जनरली गाड़ियां धुआं छोड़ी होती हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसको आप ट्रैफिक को कर्व करें तो ये आप कर सकते हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू डू इट. अगर हमें करना पड़ा तो हम इवन ऑड वाला भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. इफ वी हैव टू डू इट, विल डू इट. ये एक अच्छा इक़दाम होगा. ये फरमाइएगा बिलाल साहब, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स के हवाले से, तो हॉस्पिटल्स में इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग जो हैं सांस की बीमारी में मुब्तला इन शहरों के अंदर हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं. एक तो उसके हवाले से बताइएगा, और दूसरा ख़ास तौर पे ये फरमाइएगा कि ये जो फैक्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया, जो नॉर्मल किसान है उसको मशीन पर लेकर आना और वो जो फसलें हैं उनकी बाकियात को तल्फ करने का एक तरीक़ाकार साइंटिफिक वे में बनाना, इस पर तो काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होगा. तो गवर्नमेंट क्या इस नहिज पे भी सोच रही है कि जो हमारी तरफ से ये काम हो रहा है उसके कंट्रोल करने के लिए कुछ मशीनरी इंपोर्ट की जाए और फिर वो इन लोगों को दी जाए? पहले मैं मशीनरी वाला आपके सवाल का जवाब देता हूँ. मशीनरी जो है उसको हैप्पी सीडर कहते हैं, और वो जो है लोकल भी बन जाती है. सो वी डिसाइडेड के
टिल वेयर हियर वी आर गोना ट्राई आवर बेस्ट के फार्मर को इसके ऊपर एजुकेट किया जाए, डिपार्टमेंट को फंड किया जाए ताकि वो मैक्सिमम फार्मर्स को हैप्पी सीडर लेके दें, उससे खर्चा भी उनका बचता है एंड दे विल सी कि उनकी यील्ड्स भी जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। जहां तक कि आपने हॉस्पिटल्स का पूछा, हॉस्पिटल्स के अंदर अभी सांस से ज्यादा आंखों की इरिटेशन के साथ लोग काफी ज्यादा आ रहे हैं, आंखें उनकी लाल हुई होती हैं और इरिटेटेड होती हैं, सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। बट इन द लॉन्ग टर्म वी सी के ऐसी इन्वायरमेंट में रहने की वजह से आपको सांस की भी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो जाहिर है वो फॉरन ऑनसेट नहीं होती, वो जरा लॉन्ग टर्म आपकी डेवलप होती हैं। सही। बिलाल अफजल साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर जब हम माहौलियात के हवाले से बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ट्री प्लांटेशन करें, दरख्त लगाएं, लेकिन हम दरख्त कौन सा लगाएं ये नहीं बताया जाता। अक्सर औकात ये होता है कि जो दरख्त लगाया जाता है या तो उसकी वहाँ पे नशोनुमा नहीं होती या वो माहौल के लिए साजगार ही नहीं होता। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस हवाले से? कोई गाइडलाइन है क्या जो लोग चाहे किसी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जाके देख सके कि किस जगह पे क्या दरख्त लगा रहे हैं? क्योंकि शजरकारी की मुहिम जितनी पिछले कुछ सालों में हमने देखी है इतनी पहले नहीं होती थी, फिर भी माहौल हमारा मजीद ख़राब होता जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपके दरख्त होते हैं वो एक ऐसी फैक्ट्री होती है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनवायरनमेंट को ठीक करती है, बट अगर आप अपने सोर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे कि जो पोल्यूशन जैसे क्रिएट हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी दरख्त लगा लें उसका आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट नॉनदलेस दरख्तों के लिए पूरी एडवाइजरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। वी रेकमेंड कि आपने सिर्फ इंडिजिनस जो आपके ट्रीज हैं जो यहाँ लोकली ग्रो करते हैं सिर्फ वो लगाने हैं। इन द पास्ट हम लोगों ने जैसे यूकेलिप्टस है ऑस्ट्रेलिया से लाके यहाँ लगाया, अब लोग जो है उसको रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और हमारे बाकी सारे इंडिजिनस प्लांट्स को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सो आपने लोकल इंडिजिनस प्लांट्स प्लांट करने हैं वेन एवर पॉसिबल। जाहिर है ऑल ईयर राउंड गवर्नमेंट तो इसके ऊपर लगी होती है, शजरकारी फॉरेस्ट शजरकारी कर रहा होता है, बट लोगों को भी अपने पर्सनल लेवल के ऊपर ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां हो सके वो दरख्त लगाएं। टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड आपसे इजाज़त चाहने से पहले ये फरमाइएगा, इस स्मॉग का जो इशू है हर साल हम देखते हैं सरफेस करता है, गवर्नमेंट कोई भी हो एफर्ट्स होती हैं, फिर अगले साल तक फिर इस मसले को दबा दिया जाता है, फिर दोबारा से ये मसला शुरू हो जाता है। ये फरमाइए इसका कोई मुस्तकिल हल है? मुस्तकिल हल बिल्कुल है। आप अपने फ्यूल क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। अभी यूरो 2 हम यूज कर रहे हैं, दुनिया में यूरो 5 यूज हो रहा है क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर भी तो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, बाकी दुनिया में भी डेंस पॉपुलेशंस के सेंटर्स हैं। देन आपकी मोर रेगुलेशंस अराउंड द फैक्ट्रीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम रूल्स जितने मर्जी बना लें, जब तक हम उन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे उनका कोई फायदा नहीं है। गुड थिंग है कि नाउ वी हैव रूल्स टू कंट्रोल ऑल ऑफ दीज थिंग्स और कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट भी करें, बट एट द सेम टाइम अवेयरनेस पब्लिक जनरल पब्लिक में भी होना चाहिए कि हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप फैक्ट्री ओनर है आपकी है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन सबसे की रोल होगा। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें पंजाब हुकूमत की जो इक़दामात हैं उस हवाले कर रहे थे कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है उसके पीछे नासिर कौन कौन से हैं और किस तरह से ये बेनिफिट करेगा उस इंडेक्स को जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जनाब, और हम मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, मुल्क की तरक्की के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। दुनिया क्रिकेट के चमकते सितारे एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार।
आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है. राग रंग का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। क्लासिकल म्यूजिक जो है ये बुनियादी म्यूजिक है। प्रोग्रामों को देखते हुए जहन अचानक माजी के झरोखों में चला जाता है। मेहनत इसने खूब की है। उनके लिए बड़ी रोमांस की बात है। याद पिया जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि हम ज़रा मईशत के हवाले से बात करेंगे, और मईशत के हवाले से बात करें तो एक चीज़ हमेशा ज़ेर बहस रहती है कि क्या हमने IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं। तो इस पर बात करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि तमाम इदारों ने IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं और उनकी जो कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है। एक बयान में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी टीम IMF के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल है, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की जो कामयाबी है उसका कभी इम्कान है। बिल्कुल जी, और ये मुज़ाकरात क्योंकि ये रिव्यू हो रहा है, फर्स्ट रिव्यू, हमारा एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो कि $3 बिलियन का है IMF के साथ, जो 29 जून को हुआ था, जो साबिक PDM हुकूमत थी उनके साथ। एक ट्रांच उन्होंने उस दौर में मिली जो 1.2 बिलियन की थी। अब 700 बिलियन की ट्रांच मिलने से पहले रिव्यू किया जा रहा है वो तमाम शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो दिए गए थे, जिसमें FPR का रेवेन्यू था, जिसमें हमारा सर्कुलर डेट था, इसी तरीके से हमारी जो सब्सिडीज़ का मामला था, इसके साथ साथ फिर जो टैक्स कंसेशंस के हवाले से बात थी। इन तमाम चीज़ों को IMF की जो टेक्निकल टीम है वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो ये देख रही है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रही है। उसके बाद जो निगरान हुकूमत है उसका ये कहना है कि हमारी तरफ से तमाम जो अहदाफ हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि IMF का ये जो हमारा रिव्यू है कंप्लीट होने के बाद हमें 700 बिलियन की ट्रांच मिल जाएगी, जो कि पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के इन्फ्लोज की बेहतरी के हवाले से। और बात हो रही है यहाँ पे आज के दिन के हवाले से, मईशत के हवाले से, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जनाब जो निगरान वज़ीर आज़म है बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि वो BRI का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे जाके मुख्तलिफ MOUs उन्होंने साइन किए जो पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत बेहतरी की नवीद हैं। इसी तरीके से वो इक़्तिसादी ताउन तंजीम का जो 16वां 2 रोज़ा इंटरनेशनल इजलास है वो भी शुरू हो रहा है आज से उज़्बेकिस्तान में, और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान इन बानियान में से है जिन्होंने इस तंजीम को बनाया था 3 ममालिक के साथ मिलकर, ईरान, पाकिस्तान और तुर्किया, और उसके बाद फिर 7 जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको शामिल किया गया था। मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। इक्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते के 10 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया तंजीम के बानी अरकान हैं। सरबराह इजलास तस्वीराती रहनुमाई, सियासी हिमायत और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादले ख्याल का सबसे बड़ा फोरम है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ताशकंद में होने वाले 16वीं सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अपने कलीदी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ECO विजन 2025 के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान ECO के खित्ते में मवासलाती रवाबित और मुश्तरका खुशहाली के अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़म है। वज़ीर-ए-आज़म फोरम में तिजारत, मवासलाती रवाबित, तवानाई, सियाहत, इक्तिसादी तरक्की और पैदावारी शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की अज़म का भी अयादा करेंगे।
सरबराह इजलास में पाकिस्तान के अलावा ईरान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आजरबाईजान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्किया के सरबराहान ममलिकत व हुकूमत की शिरकत मुतवक्किह है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा ताशकंद के दौरान उज़्बेकिस्तान की क़ियादत और इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शरीक रहनुमाओं के साथ दुतरफा मुलाकातों में खित्ते समेत दिगर उमूर पर बातचीत भी करेंगे। सरबराह इजलास में ECO के तहत मुख्तलिफ जारी प्रोग्राम्स और मनसूबों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। इक्तिसादी ताउन तंजीम के बानी रुकन के हैसियत से पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और बाहमी खुशहाली के ECO अहदाफ को पूरा करने के लिए पुरअज़म है। जी जनाब, हम मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दुनिया भर की, तो दुनिया भर में यासिर कुछ ऐसी तहकीकात हो रही हैं कि इंसान जो है ना वो परेशान हो जाता है। तहकीकात के हवाले से यकीनन हम बात करेंगे और तहकीकात बड़ी दिलचस्प तहकीकात है मानूर, आई मस्ट से। लेकिन उससे पहले यकीनन पाकिस्तान में जो हम बात पहले कर रहे थे IMF के हवाले से, उसमें हमने मज़ीद जो एक्सटेंशंस देखी हैं बेहतरी के हवाले से, जो हुकूमत इस बात पे बार बार मुसर है और बार बार कह रही है कि हमारे जो इक़दामात थे हुकूमत के, उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो हमारी माशी आशारिये हैं वो मुस्बत रुझान है उनका, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो कल का दिन था उसमें रिकॉर्ड कायम किया है और अपनी जो तारीख़ है उसी को उन्होंने इस तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 54,000 की सतह, 54,700 पॉइंट्स के ऐसी 100 इंडेक्स जो है उसने एक वक्त ऐसा था अबूर कर लिया और उसके बाद फिर दिन के अख्ताम में थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 6 साल की अपनी कारकर्दगी को, उसके अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न है और उसका जो बुलिश ट्रेंड है ये बताता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं तो उसमें उनका एतमाद मज़ीद दिन ब दिन बढ़ रहा है और यही वजह कि इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है क्योंकि इकॉनमी में जो कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसमें मज़ीद बात करने के लिए ज़मीर अब्बास साहब हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़मीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रही, बेरिश ट्रेंड रहा, कल के दिन के इख्तिताम पे थोड़ा सा हमें कोई बुलिश ट्रेंड नज़र आया, लेकिन इसके बुलिश ट्रेंड जो रहा और बेरिश ट्रेंड दिन के इख्तिताम पे नज़र आया, ये बताइएगा इसके मुहर्रकात क्या हैं जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है हमारी स्टॉक एक्सचेंज? जी बिल्कुल, इसका जो असल रीज़न है वो जुलाई के एंड में IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो कि $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत सामने आया था, उसके बाद से हमें काफ़ी उम्मीद थी कि स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी तेज़ी देखने में आएगी और ऐसा ही हुआ कि जैसे ही ईद उल अज़हा की छुट्टियां खत्म हुई और मार्केट का जो कारोबारी दिन का आगाज़ हुआ उसमें मार्केट ने 2,500 पॉइंट इजाफा देखा फौरी तौर पे और वहाँ पे पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा अपर कैप लगा गया था। अपर कैप का मतलब है कि 2,500 पॉइंट्स या तकरीबन कुछ 5% जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो उसे 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया जाता है। इसी तरीके से जब माइनस में मार्केट जाती है तो भी इस पे ऐसे ही कट लगाया जाता है, ताकि कैप लगाया जाता है ताकि मार्केट ज्यादा डाउन ना जाए। तो ये फर्स्ट टाइम तारीख में हुआ कि हमने अपर लेवल पे जाके इसको कैप किया है और काफी जो है फायदा देखा गया और ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तब से हमने मार्केट में ये इंक्रीज देखा है और इसकी कंटिन्यूटी हमने फिर सितंबर के महीने में देखी कि जब हुकूमत ने पावर सेक्टर में और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे डॉलर की, उसके हवाले से जो क्रैकडाउन स्टार्ट किए, उसके बाद हमने देखा कि डॉलर का रेट बतदरीज नीचे आता गया। डॉलर एक लेवल पे सितंबर पहली को 326 रुपए पे पहुंच चुका था ओपन मार्केट में और 307 रुपए पे पहुंच चुका था इंटर बैंक में। इस क्रैकडाउन के बाद डॉलर बहुत नीचे आया और तकरीबन 278 और 280 के बीच तक पहुंच चुका था और काफी बड़ी कमी आई है। ये खास करके 40 रुपए की हमने 50 रुपए की हमने कमी ओपन मार्केट में देखी और इसी तरीके से तकरीबन 30 रुपए की कमी, 30 रुपए की कमी हमने इंटर बैंक में देखी। एक बहुत बड़ा मार्जिन था, हमारे अरबों रुपए के जो कर्जे थे वो भी उसमें हजम में भी कम हुए। तो तब से ये बुलिश ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स का एतमाद खास करके जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हैं इकोनॉमिकल, उसके ऊपर उनका काफी एतमाद। सही ज़मीर, जिस तरह आपने रुपए के मुस्तकम होने की बात की है तो इस तरह आप हैं कि सरमायाकारों का जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है, इससे पाकिस्तान की मईशत पे क्या मस्बत असरात मुरतब होंगे? देखिए, जो मौशी पॉलिसीज हैं उनका तसलसल जो है वही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। यही बात IMF ने भी कही अपने एग्रीमेंट से पहले। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैंने उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो कर्जा देने को तैयार है, लेकिन इकोनॉमिकल पॉलिसीज पे एक कंसिस्टेंसी रहेगी और इसकी वजह से हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो है कंसेंसस चाहिए। और यही चीज है कि अब जो मार्केट में भी चीज सर्कुलेट करे वो ये कि चाहे जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी फरवरी के
आम इंतखाबात के रिजल्ट के बाद, तो उनके बाद ये पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहेगी। वो अपनी तरफ से कोई ज्यादा पॉलिसीज को वैल्यूएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिर कंडीशंस रखेंगे अगर इस दफा आपने हमारी कंप्लायंस नहीं की तो अगली दफा अगर आपको कर्जे कैंसिल करें इससे ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा टफ शरायत होंगी। तो इस वक्त जो कंसेंसस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये है कि जो कोर पॉलिसीज हैं वो सेम रखी ये जाएंगी। बताइएगा बाकी जो हमारी जी ज़मीर, जो हमारी KSE 100 इंडेक्स ने परफॉर्म किया और ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिसमें इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन है? जी, जो सेक्टर्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, खासकर बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, इन चीजों में बहुत ज्यादा पैसा जो रोलिंग किया जा रहा है। खासकर इन्हीं के ही हमने देखे कि मार्केट में काफी बूम आ रहा है। और एक मैं आपको और फैक्टर बताते चलूं कि इस दफा जो डिविडेंड दिया गया है कंपनीज की जानिब से वो बहुत बेहतरीन दिया गया है, शानदार डिविडेंड दिया गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि मार्केट का पहले जो वो तकरीबन 12 करोड़ 10 करोड़ के आसपास ही चल रहा होता था, लेकिन इस बार जब से मैं तेजी देखी है ये तकरीबन 20 करोड़ 30 करोड़ के करीब जाके पहुंचे, ये कि बहुत ज्यादा है। अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल बाकी है और कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत की जैसे खासकर जो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो और ज्यादा जब क्लियरिटी देगी खासकर पॉलिसीज के हवाले से, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है डॉलर्स की शेप में जो कि इन्वेस्ट करेंगे में, उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने में आई। जो निगरान हुकूमत उन्होंने भी जो पॉलिसीज दी है वो भी काफी हौसला अफजा है, लेकिन अभी भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI जिसको हम कहते हैं वो अभी भी बहुत लिमिटेड है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है। और अगर जैसे ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, क्योंकि ये डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, डॉलर का रेट जो है वो कम होता जाएगा, रुपये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है ज़मीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल के साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है। जी बिल्कुल जनाब, और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। कहते हैं ना, मैं भी इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये जो है माजरत के साथ शेर अगर जो है गलत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन समटाइम्स बात ये है कि हम जब शायरी पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त शायरी होती है, और जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि ये शायरी किसकी है तो हमें पता चलता है कि ये शायरी इतनी डेप्थ में लिखी गई है और इसके पीछे कितना दर्द होगा। तो जो दर्द और रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों का मिलाप है जॉन एलिया की शायरी में। अच्छा, जॉन एलिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मिर्ज़ा गालिब थे, अपनी ज़िंदगी में उनको वो पजीराई नहीं मिली, लेकिन उनको जो लोगों ने जाना उनके मरने के बाद जाना, मतलब 100 साल के बाद जाके मिर्ज़ा गालिब को पता चला कि मिर्ज़ा गालिब क्या थे। ऐसे ही जॉन एलिया आज के नौजवानों के शायर हैं, आज के नौजवानों के शायर हैं। तो 8 नवंबर को उनकी बरसी मनाई जाती है। जॉन एलिया ने क्या खूबसूरत बात कही कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए हैं ज़बां में क्या। इस पर एक रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर इमरान मनसब ने तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। रेख्ता.org पर जॉन एलिया सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में से एक हैं। जॉन एलिया की मकबूलियत की कई वजूहात हैं। उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको समझने के लिए किसी लुगत की जरूरत नहीं। उनके अशार दिल को फौरन छू जाते हैं। नौजवानों में जॉन एलिया की पसंद और मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह उनका मुनफरिद लबोलहजा और इख्तरा पसंदी है। इसलिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। बहुत अच्छा। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1971 में भारत में उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में पैदा हुए। घर में शुरू ही से इल्मी माहौल ने जॉन की तबीयत की तशकील भी उन्हीं खतूत पर की। जॉन ने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में लिखा। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। कसीरुल जहद शख्सियत के मालिक जॉन एक अनथक मुसन्निफ थे, लेकिन उन्हें अपना तहरीरी काम शाया करवाने पर कभी भी राजी न किया जा सका। जॉन एलिया की कुल 6 किताबें, लेकिन उनमें से 5 उनकी वफात के बाद शाया हुई। जॉन एलिया एक ऐसे मुनफरिद और यगाना शायर हैं जिनका अंदाज न तो पहले गुजरने वाले किसी शायर से मिलता है और न ही बाद में आने वाला कोई शायर उनके लहजे की तकलीद कर सका। वो अपने सिलसिले के आप ही मौजूद और आप ही खातिम हैं। मेरी तारीफ करे या मुझे बदनाम करे, जिसने जो बात भी करनी है सरे आम करे। जॉन के यहाँ सादगी भी है और पुरकारी भी, मुहावरों का बरमहल इस्तेमाल भी, बयान में तलखी भी है और शोखी भी। यही वो महासिन है जो जॉन एलिया को जॉन एलिया बनाते हैं। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को जहान फानी से कूच कर गए और अपने पीछे एक ऐसा खला छोड़ गए जिसका पुर होना नामुमकिन है। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा, यह है एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं।
कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन ये दास्तां ख़त्म नहीं हुई और जॉन एलिया हमारे दिलों में अपनी शायरी के ज़रिए आज भी ज़िंदा है। और फ़नकार की यही खूबसूरती है कि वो अपने फ़न के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहता है। अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का और उसके बाद सुबह पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। एक बात हम शुरू से सुनते आए हैं, नो परमानेंट एनिमी नो परमानेंट फ्रेंड। और ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, बल्कि ये तब भी होता है जब इंतखाबात करीब आते हैं और हम देखते हैं कि इंतखाबी गठजोड़ जो है ना, इंतखाबी मुहिम में जो गठजोड़ है वो शुरू हो जाता है और समटाइम्स जिनका पहले गठजोड़ होता है वो मुखालिफिन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में भी। रोज़ हम एक नया बयान सुनते हैं, रोज़ हम हैरान होते हैं कि अब क्या होने वाला है, किसकी आपस में मुलाकात हो रही है, इस पर भी गहरी नज़र होती है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM में भी कुछ जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात भी जारी हैं और इंतखाबी जो इत्तेहाद है वो भी बनने का ऐलान हो गया है। कल रायविंड में MQM का एक वफ़द जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उसने विज़िट किया और मुस्लिम लीग नून के कायद से वहाँ पे मुलाकात भी की और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो तय हुई हैं, जिसमें इंतखाबी मामलात में आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक, मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक किया गया है। इस पर यकीनन बात करेंगे। ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ सामने आ रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इसका हदफ है या PTI है। कराची की सियासत में कितनी हलचल मचेगी इस इत्तेहाद से, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, नामवर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो इत्तेहाद सामने आया है, कई इसे जो तज्ज़ियाकार हैं वो करार दे रहे हैं कि ये पोस्ट इलेक्शन है इत्तेहाद बनेगा, ये प्री इलेक्शन नहीं बन सकता क्योंकि ना तो नून लीग जो है वो MQM को उतना फ़ायदा पंजाब में दे सकती है और ना ही MQM नून लीग को वो फ़ायदा कराची में दे सकती है। आपका तज्जिया क्या है इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि सियासत जो है वो एक ऐसे आर्ट का नाम है जिसमें नामुमकिनात को मुमकिन बनाया जाता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात ये कही कि कल के दुश्मन आज दोस्त बन जाते हैं और आज के दोस्त कल दुश्मन बन जाते हैं। और लेकिन देखिए, जब भी इलेक्शन आता है तो मुल्क में नई सियासी संबंधी होती है, नए सियासी इत्तेहाद बनते हैं। ये दुरुस्त है कि MQM जो है वो कोई PMLN के लिए सिंध की सियासत में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक अपना हल्का असर है और अपना उसका कॉन्स्टिट्यूएंट वोट है। लेकिन एक देखें, मुल्क में एक इससे एक वाज़ेह इशारा ये मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सियासी हम आहंगी की तरफ बढ़ रही हैं और ये सियासी हम आहंगी जो है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपने